Good morning, student. Today I will teach you geography. Okay, lesson 4 agriculture. Agriculture. आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओके, क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ फार्मिंग सच एज the primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming, cropping pattern, okay, cropping seasons in India, major crops, okay, agricultural reform, institutional reform, technological reform, okay, contribution of agriculture to the national economy, such and such things which we are going to study today, okay. So let's start chapter 4 agriculture. India is an agricultural country. Okay, almost 2/3 of India's population is engaged in agricultural activities. Okay, agriculture is basically a primitive activity. Okay, agriculture is basically a primary activity. Primary activities. That's why. Sorry. यानी हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो कितना 2/3 पॉपुलेशन जो है उस पर उसका जीवन भरण का वो तरीका है ना, कृषि से, यानी कृषि आधारित उनका जीविकोपार्जन का साधन है 2/3 पॉपुलेशन का, लाइक दैट. एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओके, though agriculture is a traditional economic activity in India, the cultivation methods have changed significantly depending upon the physical environments like rainfall pattern, land productivity, technological advancement, and socio-cultural practices. Okay. At present, in various parts of India, the following farming systems are practiced. They are the primitive subsistence farming, okay, intensive subsistence farming, commercial farming, okay, and including plantation. तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे है ना कि ये किस टाइप्स का फार्मिंग है. ओके, तो ये जो 3-4 जो फार्मिंग के टाइप्स हमने बताया, लेट्स सी वन बाय वन. The first, the primitive subsistence farming. Primitive, okay. Primitive subsistence farming is carried out by the small farmers, especially tribals, okay. Especially tribals, primitive people, okay, on a small patches of land with the help of primitive tools, okay. Tools also primitive, like hoe, dao, and digging sticks, using the family or community labors. Okay, कहीं से ये लेबर हायर नहीं करते हैं, अपने जो फैमिली हैं, फैमिली मेंबर्स, वही लोग मिल करके ये खेती बाड़ी अपना कर लेते हैं. This type of cultivation depends largely on monsoon rains for irrigation. Okay, ये मानसून पे निर्भर करते हैं. मानसून दिया तो इरिगेशन उनका हुआ, अदरवाइज droughts, dry. Natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition to the crops grown. It is also called the slash and burn agriculture. Mind that. Okay, primitive subsistence farming, that is also known as with the another name, that is the slash and burn agriculture. You have already read in the previous classes. Okay, slash and burn agriculture. In this agriculture, tribals clear a patch of forest land and burn it for their agricultural practice and leave the patch for 1 or 2 years after the land has lost its productivity. Okay, this type of shifting allows the nature to replenish the fertility of the soil through natural process. Okay, it is known by the different names in different parts of the country, है ना. और ये अपने देश में भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न रीजन में, भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है. The slash and burn agriculture in India, this primitive form of
cultivation is known as बेवार और दाहिया इन मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश में ये दाहिया और बेवार के नाम से ये जाना जाता है. ओके, कुरवा इन झारखंड, झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. लाइक दैट द सच एंड सच नेम्स that is known as the different parts of our country. Okay, the second types of farming, that is intensive subsistence farming. ये क्या होता है? This type of farming in India is practiced in areas where there is high population pressure on land. Okay, intensive. It is a labor intensive farming. वहाँ लेबर इंटेंसिव वो नहीं था, है ना. फैमिली और द फैमिली मेंबर मिल करके, फैमिली और द कम्युनिटी लेबर, वही लोग मिल करके अपना कृषि कर लेता था. बट इट इज, इसमें क्या क्या है कि इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. फार्मर्स यूज हैवी बायोकेमिकल इनपुट्स. माइंड दैट इंटेंसिव इरिगेशन टू ऑब्टेन हायर production. Okay, the such and such a difference between the intensive subsistence farming and the primitive subsistence फार्मिंग, है ना. तो प्रिमिटिव और इंटेंसिव में यही मुख्य रूप से अंतर है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज कॉमन इन इंडिया एज इट इज अ populous country. Our country is very much populous. We are the second position in the world after China, where arable land is limited. Okay, population is much and much, but land is limited, like that. Absence of other alternative source of livelihood puts enormous pressure on agricultural land. That's why. And the third type of farming, that is the commercial farming. Let's see what type of farming this type of farming is. That is known as the commercial farming, and this is the third type of farming which is found in our country India. Commercial farming. अब हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है. द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न अ गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग. ओके, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कृषि किया जाता है, ओके, तो that कृषि, that agriculture, that farming, that cultivation is known as commercial farming. Okay, the main characteristics of these types of farming is large land holdings and use of high levels of inputs. Okay, इसमें inputs high levels का लगता है. high HYV seeds यूज होता है. HYV high yielding variety seeds and good irrigation facilities, chemical fertilizer, insecticides, pesticides, तो etc. Such and such requirement is needed for this commercial farming. Okay. A typical example is rice, which is a commercial crop in Haryana and Punjab, but it is a subsistence crop in Odisha. Mind that, है ना. पंजाब और हरियाणा में ये कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है राइस. ओके, बट उड़ीसा के लिए ये क्या है? सबसिस्टेंस क्रॉप है. ओके, सबसिस्टेंस फार्मिंग है. लाइक दैट. The next is the plantation. Okay, a type of commercial farming. Plantation is also known as a type of commercial farming. What is plantation? Plantation farming produces raw material for various agro-based industry. इसका प्रोडक्शन क्यों हम करते हैं, है ना, for the various agro-based industries. Okay, in this type of farming only a single crop is grown on a large scale. Okay, so that it covers a large tracts of land using capital intensive input with the help of migrant laborers. Okay, migrant labor. Mind that the production here is mainly for market. और यहाँ प्रोडक्शन का मकसद क्या होता है? For market, है ना. For market, a good network of transport, communication, proper market facilities are required for the plantation. The such and such characteristics or feature for the plantation. Okay, well-known plantation crops are. ओके, अब हम देख लें कि प्लांटेशन में कौन कौन सा क्रॉप आते हैं. द टी इन असम. ओके, the well-known plantation crops are tea in Assam and North Bengal. Okay, and coffee in Karnataka. Okay, तो ये क्या है? प्लांटेशन के अंतर्गत आता है. The next thing, that is the cropping
पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। ओके, cultural polarity and physical diversity also reflects the agricultural practices and cropping pattern in India. Okay, various types of food and fiber crops. Mind that. Okay, एक तो फूड क्रॉप्स होगा and the fiber crops, vegetables, fruits and spices etc. constitute some of the important crops grown in the country. Okay, अब क्रॉपिंग सीजन देखिए कि हमारे देश में क्रॉपिंग सीजन क्या क्या है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। ओके, देयर आर 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन आवर कंट्री इंडिया। दे आर रबी, खरीफ एंड जायद। ओके, रबी, खरीफ एंड जायद। ये रबी क्रॉप्स क्या होता है? दीज आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ विंटर, है ना। विंटर के स्टार्ट होते ही इसको बुआई शुरू हो जाती है ना। विंटर, द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। और उसको हार्वेस्ट का टाइम क्या होता है? स्प्रिंग और एट द स्टार्ट ऑफ समर। ओके, अप्रैल टू जून। ओके, हार्वेस्टिंग अप्रैल टू जून। सम क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन दिस सीजन्स आर wheat, barley, peas, gram and mustard. So these are the such and such examples for Rabi crops. Okay, these crops are grown in a large parts of India such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and like that. The success of the Green Revolution. Okay, ग्रीन रेवोल्यूशन की चर्चा जरूरी है। द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप इन दिस रीजन। ओके, द नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न दैट इज द खरीफ क्रॉप। ये क्या है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। ओके, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर पैडी। ओके, पैडी क्या होता है? राइस। ओके, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर क्या होता है? अरहर। ओके, अरहर, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut and soybean. So these are the such and such examples of the kharif crop. Major areas where paddy is cultivated are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, like that. Okay. Recently, paddy has become important in Punjab and Haryana. Okay. In well irrigated areas of Assam, West Bengal and Odisha, such and such. Okay. The third crop, that is the Zaid crop. Okay. Kharif and Rabi हम लोग पढ़ लिए. The third type of cropping pattern which is also found in our country India, that is the Zaid crop. ये जैद क्रॉप्स क्या होता है? देयर इज अ शॉर्ट सीजन. ओके, देयर इज अ शॉर्ट सीजन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ. ये दोनों के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ना, बिटवीन द रबी एंड खरीफ. दैट सीजन इज नोन एज जैद सीजन. ओके, ये कब होता है? मार्च से जून के बीच में, बिटवीन द मार्च एंड June. This season is known as Zaid season. Okay. Some of the crops produced during this are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Okay. Sugarcane takes almost a year to grow. और sugar cane को produce करने में कितना time लगता है? 1 year. Complete 1 year. Like that. Okay. Major crops, many varieties of food and non-food crops. Okay, food crops and non-food crops are grown in various regions of the country depending upon the different cultivation practices. Okay, soil types and climatic condition. Okay, climatic conditions, soil types and the cultivation practices which determine, okay, for a particular type of the cropping pattern. Okay. Some major crops of India are as like the grains and the leguminous crops. Okay, grains and leguminous crops. ये क्या होता है?
grains and leguminous crops. Grains, अनाज and leguminous, the pulses are the leguminous crops. More or less ये आप समझिए, leguminous means pulses. दाल, okay. Rice, wheat, millets and maize are important grains, okay, grown in our country. And pulses are the leguminous crops. Pulses, leguminous crops. Rice, अब एक एक करके देख लें. इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, है ना. विच इज द स्टेपल फूड? राइस, है ना. राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. ओके, चाइना राइस का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंट्री है एंड उसके बाद सेकंड स्थान हमारे देश भारत का है. ओके, दिस खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ना. किस तरह का टेम्परेचर चाहिए राइस के लिए, है ना. वो हाई टेम्परेचर चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल. रेनफॉल कितना? अबव 100 centimeter. Okay, it is grown in the plain of north and northeastern India, coastal areas and the river delta regions. Okay, the such and such requirement for the rice. Okay, in states where annual rainfall is less, like in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan, it is grown with proper irrigation through canals and tubewells. Okay, जहां एनुअल रेनफॉल लेस है ना, वहां प्रॉपर इरिगेशन का व्यवस्था करके, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में क्या किया जा रहा है? राइस की खेती की जा रही है. द नेक्स्ट दैट इज व्हीट. ओके, दिस इज ऑल्सो अ स्टेपल फूड क्रॉप इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री. ओके, इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. ओके, सीरियल, राइस फर्स्ट cereal and the second that is the wheat. Okay, the second most important cereal crop. This rabi crop requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. जब पकने के समय क्या चाहिए इसका? It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall. Okay, rainfall कितना? 50 to 75. राइस के केस में आपने देखा है ना, क्या है? रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, है ना. देयर इज नीडेड टू लर्न दैट. ओके, like that, the two important wheat growing zones in the country are the Ganga Satluj plain in the northwest and the black soil region of the Deccan. Okay, तो गंगा सतलज प्लेन और द डेक्कन, ये टू इंपॉर्टेंट रीजन है ना. टू इंपॉर्टेंट रीजन है व्हीट रीजन. द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, कौन कौन सा स्टेट मेजर व्हीट प्रोड्यूसर है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान. ओके, लाइक सच एंड सच. मिलेट्स ना, मिलेट्स क्या? मिलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर्स ग्रेन. मिलेट्स ऑल्सो कॉल्ड द कोर्स ग्रेन्स. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, है ना. मिलेट्स के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? ज्वार, बाजरा एंड रागी. ठीक है, इसको मिलेट कहते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन, और इसका दूसरा नाम कोर्स ग्रेन भी है ना. ये भी ध्यान में रखना है. एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना. इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है मिलेट्स में, ज्वार बाजरा में. ज्वार आल्सो नोन एज sorghum. Okay, sorghum, it is rich in potassium, phosphorus and calcium. Okay, ये पोटासियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम से भरा पड़ा है ना. क्या? ज्वार. विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयरन, और आयरन का स्मॉल अमाउंट्स भी होता है इसमें. ठीक है, रिच इन पोटासियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन एंड सोडियम. ओके, it is the third most important food crop with respect to area and production. Okay, यानी कि ये एरिया, क्षेत्रफल और प्रोडक्शन के ख्याल से तीसरा यहाँ का क्रॉप है अपने देश का. इट इज अ रेन फेड क्रॉप. माइंड दैट इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज which don't need much irrigation. और इसे बहुत ज्यादा पानी, सिंचाई
नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, लाइक दैट, है ना। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, ओके। और ज्वार का सबसे मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, ओके। महाराष्ट्र फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन 2011-12। यानी जो 11-12 का जो प्रोड्यूसिंग अमाउंट था ज्वार का, उसमें महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्रा एंड एमपी, ओके। बाजरा, हाँ, बाजरा देखिए, यानी मिलेट्स के अंतर्गत 3 ज्वार, बाजरा एंड रागी। ज्वार तो आपने देखा, अब बाजरा देखिए। बाजरा आल्सो नोन एज पर्ल मिलेट, ओके, पर्ल मिलेट, एंड ज्वार इज आल्सो नोन एज sorghum, okay, SORGHUM, and bajra also known as pearl millet. Mind that it contains iron, okay, float, magnesium, copper, zinc, calcium, and vitamins. बाजरा grows well on sandy soils, okay, sandy soils में ये grow करता है, and swallow black soil, okay, और black soil में बाजरा। राजस्थान is the largest producer of बाजरा, okay, सबसे ज्यादा कहाँ ये होता है? राजस्थान में, followed by the उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा in 2011-12, okay। Ragi, the third type of millet, okay, रागी इज ऑल्सो नॉन एज द फिंगर मिलेट। रागी को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। इट इज रिच इन आयरन, है ना, इसमें आयरन की काफी मात्रा होता है। आयरन, कैल्शियम एंड रफेज भी इसमें होता है रागी में, ओके। एंड द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रागी आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ओके, लाइक दैट। अब नेक्स्ट जो है मेज, मक्का, you know, this crop is used both as food and fodder, जिसको फूड और फॉडर के रूप, दोनों के रूप में यूज किया जाता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, और मेज क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। ऑल्दो इन बिहार इट इज अ रबी क्रॉप ऑल्सो, है ना, और अपने स्टेट बिहार में इसे रबी भी कहा जाता है। विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तापमान 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, है ना, देखते हैं आजकल मक्का कितना बड़ा बड़ा ये भुट्टा मिलता है, उसके दाने कितने ये होते हैं, वो क्या है? HYV है ना, HYV सीड्स HYV है ना, लाइक दैट। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन रिसेंट ईयर्स, ओके। और ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अब देख लेते हैं। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्रा एंड बिहार आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज, ओके। नेक्स्ट इज पल्सेस। अब पल्सेस देखेंगे। दाल, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ना, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं ना। दाल हम लोग खूब खाते हैं। पल्सेस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, और प्रोटीन और मिनरल्स का ये बहुत रिच सोर्स है पल्सेस, यू नो, एंड आर ऑल्सो नोन एज पुअर मैंस मीट, और इसे पुअर मैंस के लिए मीट भी कहा जाता है, लाइक दैट। प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। पल्सेस नीड लेस सॉइल मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, है ना, कैसा इस सॉइल मॉइस्चर चाहिए एंड द ड्राई कंडीशन चाहिए, है ना। बीइंग अ लेगुमिनस क्रॉप, ओके, लेगुमिनस क्रॉप, माइंड दैट, जहां लेगुमिनस की चर्चा तो पल्सेस, ओके। बीइंग अ लेगुमिनस क्रॉप, पल्सेस प्ले अ की रोल इन क्रॉप रोटेशन, ओके, एक्सेप्ट अरहर, है ना, अरहर नहीं, एज दे हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन एंड रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, से नाइट्रोजन को, एबिलिटी को मेंटेन करता है एंड फर्टिलिटी को रीस्टोर करता है। मेजर पल्सेस दे आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, ओके। तूर क्या होता है? अरहर दैट इज तूर, अरहर जिसे अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, चना। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। तो सबसे दाल का सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है?
मध्य प्रदेश। ओके, सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फूड क्रॉप, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ओके, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में क्या क्या आएगा? शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी। ओके, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। शुगर केन, दिस इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एनुअल प्लांटेशन क्रॉप, है ना, प्लांटेशन क्रॉप है। एंड कहाँ कहाँ? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। माइंड दैट इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है शुगर केन के लिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, विथ टेम्परेचर बिटवीन, टेम्परेचर कितना? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। माइंड दैट। एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 cm एंड द 100 cm, और 75 से 100 के बीच में वहां रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर कितना? 21 to 27 के बीच में, लाइक दैट। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहां बारिश कम होती है वहां इरिगेशन का प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, सिंचाई, लाइक दैट। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील, है ना। शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर कौन सा? ब्राजील है। एंड आफ्टर ब्राजील वी, our country India, so we are at the second position, है ना। sugar cane is the raw material used for manufacture of sugar। okay, है ना, sugar इसी से बनता है, चीनी, sugar, गुड़, जैगरी, है ना, like that। the major sugar cane producing states are, यस, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन सा हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, बिहार, है ना, लाइक दैट। द नेक्स्ट दैट इज ऑयल सीड्स, है ना। इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, है ना। 2008 में भारत चाइना के बाद सेकेंड स्थान पे था ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में। इन द प्रोडक्शन ऑफ rapeseed, India was the third largest producer in the world after Canada and China in 2008। यानी 2008 में कनाडा और चाइना के बाद तीसरा स्थान भारत का था, है ना, किस में? रेपसीड में, रेपसीड। ओके, एंड many varieties of oil seeds are grown on about 12% cropped area of the country, है ना। कितना कवर करता है? 12% क्रॉप एरिया, है ना। ये जितना भी क्रॉप एरिया है उसका 12% क्रॉप एरिया कवर्ड विथ ऑयल सीड्स। माइंड दैट। द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड आर, क्या क्या है ऑयल सीड्स में? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, है ना, तिल, है ना, एंड द सोयाबीन, ठीक है। इनस्टीड एंड सनफ्लावर, ओके, और सनफ्लावर भी। Most of these are edible and their extracted oil is used as a cooking medium। ये सब edible seeds हैं, है ना, और इससे क्या होता है? कुक, इससे जो ऑयल निकाला जाता है वो कुकिंग में यूज किया जाता है। Some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments, है ना। और some of the oil seeds that is used for production of soap, cosmetics and ointments. Mind that. Okay. Groundnut is the major oil seed produced. Okay. About 50% of total oil seeds produced, है ना। यानी जितना भी ऑयल सीड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, भारत में, उसका हाफ क्या होता है? ग्राउंडनट। ओके, एंड इज अ खरीफ क्रॉप। और क्या है ये? खरीफ क्रॉप है। Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Andhra, Tamil Nadu, okay, in 2011-12, है ना। ईयर 2011-12 के अनुसार मेजर प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंडनट का कौन सा स्टेट है? गुजरात, और उसके बाद आंध्रा एंड तमिलनाडु, ओके। while linseed and the mustard are रबी क्रॉप, है ना। और लिंसीड एंड मस्टर्ड, सरसों, ये क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। एंड खरीफ क्रॉप, सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, ओके।
Castor is both a rabi and kharif crop, like that. The next is tea, चाय. टी को देखें. This is a plantation crop. टी क्या है? It is a plantation crop. This beverage crop was introduced in India by the British. ब्रिटिशों के द्वारा इंडिया में इस बेवरेज क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया ना. यानी फर्स्ट टाइम दिस प्लांटेशन क्रॉप और द बेवरेज क्रॉप was launched by the Britishers. Okay. Now most of the tea plantations are owned by Indians. आज इंडियंस के द्वारा खुद किया जाता है. This bush plant requires a tropical or subtropical climate along with deep and fertile well-drained soil. Well-drained soil. ये नहीं कि पानी वहां रुक जाए, है ना, पानी निकल जाए. Like that. Well-drained, है ना, उसको well-drained soil कहते हैं. Rich in humus and organic matter. Okay. Organic matter. Tea bushes require warm and moist frost-free climate. Climate कैसा चाहिए टी के लिए? Warm and moist frost-free. Warm and moist frost-free climate all through the year. पूरे साल इसके लिए ये चाहिए. Tea is a labor-intensive industry. ना, इसकी टी का ये another feature. Labor-intensive industry. क्यों लेबर इंटेंसिव इसे कहा जाता है? विच रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, है ना. देखते रहते हैं ये में चाय बागान में आप. द प्लग्ड लीव्स आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स टू मेंटेन देयर फ्रेशनेस, है ना. इसके फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है. मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर असम, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts in West Bengal. Okay. Tamil Nadu, Kerala. Such and such states which produce tea in our country, India. Okay. In 2008, India was the third largest producer of the tea after China and Turkey. यानी 2008 में इंडिया का तीसरा स्थान था और पहला स्थान चाइना का, दूसरा स्थान तुर्की का. Okay, the next crop, that is the coffee. Coffee, in 2008, India produced 3.2% of the world's coffee production. ठीक है ना. वर्ल्ड का कॉफी प्रोडक्शन का इंडिया कितना प्रोड्यूस किया था 2008 में? 3.2%. और इंडिया में कहाँ पे ये होता है सबसे ज्यादा? कर्नाटका इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्लांटेशन क्रॉप, of which the beans are crushed to give the beverage of its distinctive flavor. Distinctive flavor. Karnataka, mind that. Indian coffee is known in the world for its good quality. है ना, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कॉफी अपने गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है. The Arabica variety, है ना, the Arabica variety initially brought from Yemen. है ना. अरेबिका जो वैरायटी है ना कॉफी का, इनिशियली ब्राउड फ्रॉम यमन, यमन से आया था. इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ओके. और यहाँ प्रोड्यूस हुआ. इट हैज ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसका डिमांड पूरे विश्व भर में है. इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द बाबा बुदान हिल्स. माइंड दैट, बाबा बुदान हिल्स. एंड इवन टुडे इट इज confined only to Nilgiri Hills in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay. The next thing, that is the horticulture crops. ये क्या होता है horticulture crops? समझ लीजिए. These includes the cultivation of both fruits and vegetable. Horticulture में vegetables and fruits both are included. India was the second largest producer of horticulture crops in the world. ना, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में हमारा देश का दूसरा स्थान है आफ्टर चाइना. ओके. एंड द चाइना इज द फर्स्ट. ओके. प्रोड्यूसिंग अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. ओके. वर्ल्ड का वेजिटेबल्स का कितना इंडिया प्रोड्यूस करता है? 13%. इंपॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूसेस ऑफ इंडिया आर, क्या क्या है, कौन कौन सा वेजिटेबल्स यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है वर्ल्ड का? पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. सच एंड सच vegetables which are produced inside our country India. Most of the fruits like fruits में आप देखते हैं
most of the fruits like bananas, oranges, apples are plantation crop. Okay. अब देखेंगे फ्रूट्स ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया विच आर इन ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इस जो हमारे यहाँ जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है ना, उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। और ये कहाँ कहाँ होता है ना, तो पार्टिकुलर फ्रूट a particular region, okay, that I am going to deal that, such as mango, है ना। मैंगो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है जिसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, बेस्ट क्वालिटी का मैंगो? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ओके, लाइक दैट ऑरेंज, नागपुर एंड चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय, है ना। एंड बनाना तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कर्नाटका। ओके, पाइनएप्पल मेघालय, है ना, मेघालय का पाइनएप्पल। एंड द ग्रेप, अंगूर, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा। ओके, लीची एंड गुआवा, लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार मुजफ्फरपुर, यू नो, यहाँ की लीची मशहूर है, एक्सपोर्ट होता है, यू नो। एंड एप्पल एंड पियर हिमाचल प्रदेश। ओके, एप्रिकॉट एंड वालनट जम्मू एंड Kashmir. These are the such and such fruits which are a great demand in the worldwide. Okay. The next thing that is the non-food crop, है ना। ये तो food crop हम लोग देखें। Now we are going to look about the non-food crop, है ना, जो food crops नहीं है। हाँ, the crops which are not edible, which are not used for the used as a food items, that is called the non-food crops, such as rubber. Okay, rubber है, and the fiber crops. Okay, jute, है ना। तो such and such crops which are known as the non-food crops. Okay, rubber, अब देख लीजिए रबर का। Rubber is mainly an equatorial crop. Okay, mind that, equatorial crop, but also grown in tropical and subtropical areas under a special condition. It requires moist and humid climate. कैसा क्लाइमेट चाहिए रबर के लिए, है ना? Moist and humid climate with rainfall, और rainfall कितना चाहिए? More than 200 centimeter, and temperature above 25 degrees Celsius. Okay, so just keep in mind the temperature, okay, rainfall and climate, right? ना, it is an important industrial raw material, है ना, और ये raw material है इंडस्ट्रीज के लिए रबर। It is mainly grown in Kerala, है ना, और ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, in 2010-11 India ranked 4th. ओके, 2010-11 में भारत का रैंक चौथा था, है ना, द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स, है ना। रबर के प्रोडक्शन में हमारे देश का चौथा स्थान था, है ना, 2010-11 में। लाइक दैट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स such as cotton, jute, hemp and natural silk are the 4 major fiber crops grown in India. इस फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत 4 क्रॉप्स आते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क। ओके, the first 3 are derived from the crops grown in the soil. ओके, फर्स्ट 3 यानी कॉटन, जूट और हेम्प ये सॉइल से, मिट्टी से नेचुरली। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स। ओके, जो चौथा जो सिल्क है, ओके, द नेचुरल सिल्क, वो क्या है? कोकून से प्रोड्यूस होता है। ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो माइंड दैट, इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, है ना। रेशम के कीड़े, है ना, उसको अगर पालन करते हैं और उससे क्या सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, कॉटन के बारे में अब देखते हैं। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। ओके, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहीं से ये ओरिजिनेट हुआ कॉटन, देन दैट इज डेवलप्ड द थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, it is one of the major raw materials for cotton textile industry. India was the second largest producer of the cotton after China in the world.
in 2008, है ना। यानी 2008 में चाइना के बाद इंडिया कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश रहा है। कॉटन ग्रोथ इज गुड इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इसके लिए फेवरेबल है। ओके, इट इज अ खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप है ये? इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर, है ना। और ये 6 से 8 महीने में ये कॉटन तैयार हो जाता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, है ना। तो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द कॉटन। ओके, द नेक्स्ट इज जूट। जूट देखते हैं अब। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। माइंड दैट जूट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर. It grown on the well-drained fertile soils in the flood plains where soils are renewed every year. Okay. High temperature is required during the time of growth, है ना। और इसके ग्रोथ के समय टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, these are the major producing states of jute. Okay, this fiber is very strong, but due to its roughness, it is used to make gunny bags. Okay, rough है ना जूट। जूट का कपड़ा पहनते हैं आप? नहीं पहनते हैं। You don't like ना? Why? Because that is the rough, like that. मैट्स, तो इसका यूज किस में होता है? इट इज यूज टू मेक गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarn, carpets and other artifacts. Okay, due to its high cost, it is now losing the market to synthetic fiber and packing materials, particularly the nylon, है ना। नाइलन, तो सच एंड सच थिंग्स। अब देखेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कि भारत में, है ना, कृषि को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किया गया, है ना। अब ये देखते हैं। कंटिन्यूअस यूज ऑफ सेम लैंड विदाउट प्रॉपर इंप्रूवमेंट। ओके, यानी प्रॉपर इंप्रूवमेंट के बिना हैज लिमिटेड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. ओके, even though irrigation facilities are developed still in many parts of India, agriculture is dependent on monsoon and natural fertility of soil. In India, about 90% of its population is dependent upon agriculture. है ना, हमारे देश के 90% आबादी कृषि पर आधारित है ना। ये thus technological as well as the institutional changes become necessity for revolution in agricultural sector, है ना। That's why that is needed. Okay, क्या? What is needed? The reform, the agricultural reform. Okay. द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. तो इंस्टीट्यूशनल कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है? मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंक्लूड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स जिसे चकबंदी कहते हैं, चकबंदी, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एबोलिशन ऑफ जमींदारी. तो सच एंड सच इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर डन ना by the government for the agricultural development. Okay. The second, the right of inheritance divided the land holdings to very small units that reduce productivity. इससे भी प्रोडक्टिविटी, बेतहासा पॉपुलेशन बढ़ रहा है. अब हम क्या हो रहा है, आपस में बैठते हैं तो लैंड होल्डिंग भी बढ़ता है ना, कि केवल घर बढ़ता है, केवल किचन बढ़ता है, लैंड होल्डिंग भी तो बढ़ता है. तो आप बीच में जो ये देते हैं हर पगार, ये तो वो तो फिर वेस्ट हो रहा है ना, स्मॉल होल्डिंग्स हो गया. तो इससे क्या होता है, लेस प्रोडक्शन होता है, लाइक दैट. सो द लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑन आवर द 5 फर्स्ट ईयर प्लान. इसलिए ना ये स्थिति थी. तो आजाद, हमारा देश जब आजाद होता है तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है ना, 5 ईयर प्लान्स में ही. अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देखते हैं कि क्या है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म. ओके, द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनैक्टेड बट देयर इंप्लीमेंटेशन वाज लैकिंग समवेयर, है ना. यानी उसका इंप्लीमेंटेशन, लैंड रिलेटेड लॉज तो बने, ठीक है, बट इंप्लीमेंटेशन जो है वो सही
नहीं हुआ, उसमें लैकिंग रह गया. दैट्स वाई the government of India in 1960s 70s, mind that in 60s 70s introduced agricultural reform to improve Indian agriculture. Okay, how to improve the Indian agriculture, उसके लिए हमारी सरकार 60-70s के डिकेट में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करती है. सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव वर टेकन, लाइक क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया. द ग्रीन रिवोल्यूशन. ओके, द ग्रीन रिवोल्यूशन विच वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द व्हाइट रिवोल्यूशन. माइंड दैट व्हाइट रिवोल्यूशन ये क्या होता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है. ऑपरेशन फ्लड केम इन द इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, इट हेल्प टू इंप्रूव द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर अलॉट, बट द concentration of the development remained only in few selected areas, है ना. लेकिन ये कुछ सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रह गया, यूनिवर्सल नहीं हो पाया. अब लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना. लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए, इन द 1980s and 1990s many institutional and technical reforms were made under the comprehensive land development program, LDP, Land Development Program, Comprehensive Land Development Program. Okay, पहला क्या किया गया, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट. ओके, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, इसके अगेंस्ट में क्या क्या किया गया, क्रॉप इंश्योरेंस. ओके, प्रोविजन फॉर crop insurance. And the second institutional reform, that was establishment of Gramin. Okay, Gramin, you know, rural Gramin bank, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest. कम से कम ब्याज दर पे गरीब किसानों को, है ना, ऋण मुहैया कराना, है ना. ये मंशा थी हमारी सरकार की. दैट्स वाई द ग्रामीण बैंक लॉन्च्ड इन रूरल एरियाज. अदर रिफॉर्म्स क्या क्या किया गया, ये अपार्ट फ्रॉम लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मेनी अदर बेनिफिट स्कीम फॉर द फार्मर्स, सच एज फॉर एग्जांपल, है ना, केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड. ये नाम आपने सुना होगा. केसीसी स्कीम फॉर गिविंग इजी एंड चीप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स. ओके, द सेकेंड, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वे आर इंट्रोड्यूस थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स. अवेयर, हाउ टू अवेयर द इंडियन फार्मर्स, फॉर दैट द स्पेशल weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced through the radio and the television channels, like that. Government also announced minimum support price. Okay, MSP, minimum support price, MSP, mind that, for various agricultural products like cereals, pulses and others. Okay, like that. And the lastly we are going to finish with the Bhudan and Gramdan. Mind that, Acharya Vinoba Bhave. This is the last. Bhudan and Gramdan. Vinoba Bhave, a follower of the ideals given by the Mahatma Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi undertook a Padyatra to spread Gandhiji message over the whole of India. Vinoba Bhave planned to solve the problem of poor landless villages, through cooperative farm with government assistance. Okay, अब मैं जो नाम बताने जा रहा हूं वो नाम आप लोग याद रखिएगा. क्या, श्री रामचंद्र रेड्डी. ओके, श्री रामचंद्र रेड्डी was first to offer 80-acre land. He was the first person, okay, who offered the 80-acre land which was to be distributed among 80 landless villagers, and then this mission was known as भूदान. और इस मिशन को भूदान के नाम से जाना जाता है ना, जो बाबा रामचंद्र रेड्डी ने अपना 80 एकड़ जमीन दान कर दिया, है ना, लैंडलेस भूमिहीन ग्रामीणों को, उसे भूदान के नाम से जाना जाता है. अब ग्रामदान देखते हैं. लेटर Vinoba Bhave traveled and introduced his ideas widely all over India.
Some zamindars offered to distribute some villages among the landless. Okay, जमींदार भी डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, वितरित करने लगे लैंडलेस को. दिस वाज नॉन एज ग्रामदान, है ना. तो जो भी भूमि डिस्ट्रीब्यूट वितरित किया गया जमींदारों के द्वारा भूमिहीनों को, दैट इज नॉन एज ग्रामदान. Some landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of the Land Sealing Act. हाँ, उस समय लैंड सीलिंग से बचने के लिए, है ना, लोग क्या क्या करना शुरू किया, जमींदार लोग अपना जमीन दान करने लगा. दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. ओके, this movement which was the launched by Acharya Vinoba Bhave, that is also known as the bloodless revolution. Bloodless revolution, खून का एक कतरा बहे बिना लोग अपना भूमि दान करते गए और भूमिहीनों को जमीन मिलते गई, है ना. गांव का गांव दान लोग किया, लाइक दैट. तो ये चैप्टर ओवर हुआ. अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.